Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the 5th episode of Radical Measures podcast. 5th episode, buddy. All right, it's going well. Yes. 5 weeks. Right. This is me, Gaurav Pawar. That's Noel Cordero. Yep. Right there. Yes. And this is Radical Measures podcast. You see the new logo and whatnot. We are fucking killing it. Growing. Man. Growing Strong. Growing. In fact, you know what? That brings me to the first topic that we are going to talk about. All right. I'm telling you, man. Now that I'm 33, I've realized that my body is just the expiry date is Reaching. It's becoming bigger. मतलब देख तू प्रोडक्ट लेता है ना ऐसा कुछ लेगा ठीक है तो एक्सपायरी डेट यूजुअली ऐसा पतला सा फॉन्ट में नीचे एक कोपरे में रहता है बराबर अभी तेरे को मस्त से नजर आ रहा है जैसा मेरा उम्र बढ़ रहा है ना ब्रो वैसा उसका फॉन्ट भी बढ़ रहा है कि नजदीक आ रहा है ब्रो नजदीक आ रहा है डेट वो इंडिकेटर लाइट जो रहता है ना टिक 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 बार बार आ रहा है हाँ मतलब ये देख ये माल फ्रिज में रखना पड़ेगा तेरे को अभी नहीं तो खराब होने वाला है वो विंडोज का कैसा ईमेल आता है ना कि इसके बाद अपग्रेड नहीं है इसके बाद सर्विस नहीं है ठीक है अब तुम दूसरा पुनर्जन्म ले लो अभी न्यू जनरेशन आने वाला है न्यू कंपैटिबल नहीं होने वाला तो मतलब मेरे को समझ में आ गया कि थोड़ा तो वर्कआउट कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो मतलब वाट लगने वाला है full watt okay and I've also noticed that because I've seen so many like old people live in my society you know in my locality so every time I'm down अरे इसका घुटना खराब है क्यों चला नहीं ओवरवेट है नहीं चाहिए मेरे को you know इसका पीठ का सीन है ऐसा झुक झुक के चल रहा नहीं चाहिए मेरे को ये सब समझ में आया ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए लाइफ में you know where your मतलब नहीं चाहिए बराबर है ना मांगता like you earned through your life to reach that 20 mala building exactly and then you can't climb to exactly you know तो वो नहीं करने का so I decided like to do the least boring thing because that's the thing ना workout का basic issue क्या है कि अपन regularly why discipline and yeah you can't have any off day ऐसा trainer लोग क्यों बोलता है because एक भी दिन मिला ना चलो फैलेगा मतलब अगला हफ्ता तू सब एक्सक्यूज वापरेगा सोरनेस है टाइम नहीं है पार्टी किया था हैंगओवर है सब एक्सक्यूज करेगा तू बाकी का लाइफ बिकम्स एन एक्सक्यूज ना हाँ क्योंकि कंटाला आता है रे मतलब वापस जाके वही कर मेरे को तो अभी कोई लोग को अच्छा भी लगता है यू नो कि टैंक टॉप पहन के फुल ऐसा कोई लोग का वाइब भी है वो यू नो ट्रू बट मेरे को मतलब बोरिंग नहीं चाहिए था इसके लिए मैं हाइकिंग जाने को चालू किया मतलब मेरा नज़दीकी यू नो नेशनल पार्क का एक पार्ट है तो उधर चढ़ के जा सकता है फुल यू नो ऊपर तक वगैरह और मैं चालू किया बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट मेडिटेटिव डूड मतलब तेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है कोई बोल रहा नहीं है और एक सेट कभी भी रुकने का रुक सकता है आज तक इतना ही हाँ मतलब बाकी का लाइक बिकॉज तू यू आर इन द मिडल ऑफ डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ना hiking is that dude you know I'm not exercising I'm discovering the world see wo wala exactly it's more like you know if you go to a gym okay it's the same thing तेरा ट्यूसडे मतलब शोल्डर डे है तेरे को मालूम है you know it's the same thing it's another routine exactly routine नहीं है I'm Christopher Columbus minus whatever I think Columbus दूसरा लोग को भेजा रहेगा तू चढ़ के जा देख कुछ है क्या वो खुद नहीं गया but yes I mean not Christopher Columbus but I just feel like a human being you know because dude we are living in the city and whatnot or I was just so much more aware of like imagine if you are in the gym okay तू set weight किया है full push किया है and then you just look at a valley it will be so nice no कि अरे हाँ झाड़ वाड़ है वैली फुल आवाज वगैरह वाह you know you feel nice like in the city dude it's mostly honking dogs barking also like तू city में रहेगा you are around all the inventions of human beings which are basically replacement for parts of your body also like vehicles are replacement for your feet exactly so now you're sitting and feeling that my feet are useless but when you go in a valley and all जहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं है you have to use your legs and all तो लाइक अरे ये यूज में आ गया डूड अच्छा हुआ पैर है ब्रो अच्छा हुआ पैर है ये मतलब पैर को लाइक इट्स योर फीट बीइंग लाइक आई हैव पर्पस ठीक है योर फीट बिलीव इन देमसेल्व्स yeah नाउ दे आर सडनली लाइक oh okay this is what I meant to be doing I thought I used to be on the table ऐसा कपल गोल्स नहीं हो नहीं that is also obesity couple goals टेबल पे एक जिस्म
आधा जान. So I decided to go hiking and it was so much fun because you're out there. The noises are different. Mobile लेके नहीं जाता है मैं. Although मेरे को मन होता है बहुत लेके जाने को कि फोटो बिटू Instagram लाल करने का टाइम वो सब फीलिंग आता है मेरे को. But when you go on a hike, dude, I noticed the like especially in this monsoon time na, like the variation of the color green is so nice to the eyes, man. Yeah. It is so nice. You are first of all away from sirens because in a pandemic sirens are also heard all the time. You know, so in the jungle, so you are just listening to cricket, and I would rather. People always shit on crickets, right? Like people are always like they are always used to represent something worse than silence or a version of silence. Or like silence where what you said, like preceding your failure, exactly. proceeding your failure. It's Exactly. a sign of failure, but it's not. Yeah, so It's not the phrase people usually use is, you know, and it was so silent that you could hear the crickets. That's a good place. That is a very good place. बहुत अच्छा जगह है. मतलब इधर तेरे को compete करने के लिए कोई नहीं है bro. Compete से भी ज्यादा let the crickets talk to each other, no? It's better that is happening than I am having conversations with other people. You know? You ever wonder that the thing crickets are telling each other like ये कितना आवाज है रे, कितना आवाज है रे. Like the reason why they have become louder is like सुने इधर है क्या? Hello. Yeah, definitely. जंगल में तो होता ही रहेगा वो. Definitely. Or maybe they are just making that noise so that us human beings fuck off back. Like, अरे मत आओ रे इधर, तुम चुतिया लोग घान करके जाता है. Yeah. निकलो They're इधर just से. heckling us, but we don't get it. We don't get it. हम लोग को समझ में नहीं आ रहा उसका. इतना छोटा सा बैठ के क्या रे क्या कर रहे इधर. आगे दो पैर वाले बंदर से बिना बाल के बंदर क्या बन गए, खुद को कुछ भी That is what happens. That is what happens when you try to impersonate. No. When a person with the name Noel Cordero starts talking in Hindi, just falls down. Sometimes it happens. Sometimes it happens. Oh, but it's fine, dude. It's completely all right. But I enjoyed a lot. I saw like I understand all of the poetry about this season now. You know, as a child I never got it कि क्या बारिश के बारे में लिखते जा रहा है पागल माफी. मेरा यूनिफॉर्म नहीं सूख रहा. क्या बात कर रहे हो? सैंडल गीला सैंडल लेके जा रहा है मैं, और तू पोएम पे पोएम लिख रहा है. Like the pitter patter of the raindrops touches the soul. चलना. हाँ, और पानी भी गिर रहा है. हाँ, फिर बाल भी गीला हो रहा है. बाल नहीं, मेरे लिए सर गीला हो रहा है. बट तभी था ना ब्रो. तभी था. एक जमाने में था. या. But it feels so nice because I could see it's almost like everything is coming alive. You know, like you can see all sorts of different colors of insects. You know, lal color kaisa. Snails. Oh, I saw snails after such a long time, man. Yeah. I remember when I was a child during monsoon and whatnot, we used to like, you know, because बचपन अपन छोटा, like at least तेरा उम्र मेरे से कितना 5-6 साल कम है. हाँ 6-7 साल ना. But even like when I was very young, no, like and I think तेरे टाइम में भी बिल्डिंग में नीचे जाके खेलने का स्नेल्स वगैरह देख के then we try to think अरे क्या है ये ऐसा इतना हलू चल रहा है, you know, अरे शेल में जा. We had that sense of wonderment. हाँ, because you discover and like, oh, this is a new thing of the world only that I didn't know. Like this is the world. हाँ, ये actual world. हाँ, ये actual world है. You know, this is what exists. And you know, अभी बच्चा लोग को मैं देखता हूँ, dude, I don't think that they even get a chance. I haven't seen snails in my locality, dude. हाँ, because there's nothing to eat for snails around. Yeah, grass उतना है ही नहीं वो. हाँ, मतलब lawn वगैरह ऐसा है, but like just the fact that these small things, as far as our memory from childhood is concerned, the next few generations, they are not like tripping on that. You know, but I became so nice and nostalgic when I went for the hike now, मतलब because it's a very, at least for me, it feels like a very primal thing. Like, ये तो तू करना चाहिए चुतिया. हाँ, that is the feeling you always get when you do some physical thing working. Like, why am I not doing this every day? Yeah. And this part, like the place where I go to hike, you know, it's basically, it has a lot of not sentimental value, but it has been a part of my childhood as such. You know, my dad used to take me over there. Like my dad, for people who don't know, my parents were cops. If you haven't checked out the video on YouTube, check it out. If you are a Maharashtrian, if you know Marathi, there are subtitles. Coming back, okay, after the plug. So my mom, dad were cops, right? So they barely got any time. ऐसा तो जब भी मिलता था ना, like I remember. Now when you know what happens when you think back to your childhood, you understand, na, in retrospect, what my father was going through as an adult that time. Yeah. You know,
I get why you said science कर. I get that. हाँ मतलब yeah, that too is in on a bigger scale, but like they barely got any time to spend with me because वो लोग को मुंबई में घर खरीदने का था रे. तो वो लोग का priorities अच्छा था. I agree with those priorities now. When I was a kid, I used to feel like अरे मेरे साथ टाइम पास करो थोड़ा बहुत. अभी नहीं अच्छा हुआ घर खरीदा तुम. Neglect me with a library, I'm fine. So when I was a kid, I remember I overheard this conversation because small fucking house, 1 BHK whatever. My mom was telling my dad, when you're a kid, like your mom has to push your dad na ki spend some time with like अभी थोड़ा 5th standard 4th standard में आया ऐसा लड़के के साथ थोड़ा developing a personality. हाँ मतलब थोड़ा chill करे भाई इसके साथ. Please make sure it doesn't develop in the wrong way. Because it was very difficult ना. कभी नाइट ड्यूटी रहता था फिर डे ड्यूटी रहता था. अभी उसमें कभी आके साला एक तो रेपिस्ट मर्डरर लोग को देखा फिर तेरे को ऐसा बच्चे को पूछेगा होमवर्क क्या है बेटा मैथ में क्या है. Yeah, because your bar of humanity is so low. You don't expect that much from kids also. Like I get it now that my father did not want to immediately spend time with me because he was like, I'm still carrying shit from the police station. I don't want to give it to him, So he used to be like by himself. But I remember one time he had taken very good advantage of the fact that he was a cop because this area, Sanjay Gandhi National Park, it's a amazing, beautiful. I hope it fucking survives. It's one of my favorite places in this city, And अपना लेक्स का जो फिल्ट्रेशन का सीन है ना विहार तानसा वगैरह उसका फिल्ट्रेशन प्लांट है मुलुंड भांडुप के बॉर्डर पे. एंड माय डैड had taken me on the bike just कि मतलब he knew कि मेरे को बाहर जाने को वगैरह ऐसा थोड़ा बहुत मतलब डिस्कवरी देखता है छोकरा मेंढक वगैरह देखने को अच्छा लगता है तो लेके जाते हैं जंगल में ऐसा और बोल दूंगा इधर शूटिंग होता है. वो बोल देगा मेरे से परमिशन लिया था पुलिस परमिशन मैं दिया था. वो डॉक्यूमेंट्री याद है ना तेरे को इधर ही लेके आता मैं गोरा लोग को देखा ना इधर ही. वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बंदे को बोला ये देख ये मत खा ये मत खा ये चाटो ये अपना स्पेशलिटी है संजय गांधी ये चाटो. It would be my favorite episode if I see Bear Grylls and then my father on the side and Bear Grylls is looking at how much protein does this caterpillar have and my father नहीं वो पत्ता खा. No he'll be like अरे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है खाओ प्रोटीन मत खींचो. But he had taken me on the bike and he had shown his police ID card and he used to use that route also. A couple of police officials used to use that because people can't go, like normal citizens are not allowed. It's a protected area as such. I think I'm questioning is can you say that openly? It was long time ago, dude. That time it was the norm. Abhi public नहीं जाता उतना, but I'm talking when I was in 3rd standard. Okay, cool. Abhi no, the existence of that road is it top secret or something? Is my question. No, it's not. No, दिखता है dude. Google पे दिखता है. Google पे दिखता है, गंजेला गेट है, सब है bro. ऐसा कुछ छुपाया नहीं है. अंदर झोपड़पट्टी भी है, तो it's not. You cannot be अरे मेरा आजोबा है इधर क्या बात कर रहे हैं. But there is an ajoba in the story, I'll tell you. So what happened was, and my father is dead now. So what are you going to do? Don't put a case on him. Go for it. ढूंढ के लाओ चलेगा. अगला जन्म. But yeah, so he took me over there. We were on the bike and not on Maspiki andar, and he knew the people also who were there. The guards who were stationed because as a cop, couple of cop cars used to go. Why? To avoid traffic because it's a protected area ना तो सीधा आरए को ज्वाइन होके उधर से निकलता है तो और वो पाइपलाइन का रास्ता है because that was the pipeline laid down that long ago by the Britishers. अच्छा हाँ treatment plant and correct. Okay. So a huge pipeline goes through that, hence it's protected. Plus wildlife is also there, So all of the lakes have crocodiles in Sanjay Gandhi. That's what I trip on the most, like the amount of variety of flora and fauna within a chaotic city like Mumbai. Such a chaotic city like Mumbai, and it is such a nice reprieve from things. So my dad took me and he stopped by one of the lakes and he used to what he used to do is he used to burn the dried grass in patches on purpose so that if there is ever a fire or if somebody throws a cigarette या ऐसा कुछ should not conflagration नहीं होना चाहिए. Because that is how apparently most of the forest fires start. Like a smoker just does this
and that's it. He turns a forest into his lungs. Into his lungs. ऐसा ऐसा किया और 400 एकड़ गायब. कांटे खेल रहा है बे वो. So, like, on behalf of all smokers, I would like to apologize. You know, this is not behavior that I condone. I like forests. Hashtag not all smokers. Hashtag not all smokers. Okay. Hashtag not all smokers. Make it viral, motherfuckers. Okay. Not all smokers. Not all smokers. My God, imagine we have gone so woke that I'm standing up. pro-smokers. We are pro smokers now. So he used to burn out those patches of grass and whatnot, and we barely spoke because again it was that time when you know parents like did not like how are you feeling. He didn't give a shit. I didn't like you know I was just happy that oh mera baaju mein mera baap beta hai. You know it was nice. They would not ask you about a feeling. They would just tell you which part of your personality you have to just repress your feelings in. हाँ मतलब वो व्यू वगैरह देख के फिर बाप बोले ये मत कर. इसके लिए तेरे को इधर लेके आया देख. And he used to do that all the time. Like whenever he used to take me to a place like this, he used to tell me all that he expects from me. Like मतलब देख तो बड़ा होके पैसा कमाने का है ये मतलब he had started it from a young age only because he had realized ना कि this whole world is fucked, dude. Especially being a cop, he was like पैसे का तो जरूरत लगने ही वाला है ब्रो. सब लोग वही वापरता है apparently. So he was telling me all of this and I was enjoying the view nicely, must picky, you know, tuning him out a bit, but just enjoying that moment with my dad. And suddenly like behind me like there's a lake. Now बीच में से ऐसा रास्ता है. बीच में से नहीं लेक का साइड से एक रास्ता जाता है ऐसा. एंड आई कुड हियर स्प्लैशिंग रे थोड़ा बहुत. तो मैं डिस्कवरी वगैरह देखा और मैं बहुत मतलब मेरा माँ बाप नेग्लेक्ट किया था लाइब्रेरी के साथ ना. तो दैट्स द बेस्ट वे. सो आई वाज एंड आई हैव ट्रिप्ड ऑन crocodiles a lot like as a kid. It somehow I think that survival instinct that is passed on through generation ना. छिपकली, crocodile, dinosaur, कोई भी साइज का lizard से फटना चाहिए. So I read about crocodiles a lot and I tripped on it quite a bit. So I knew कि these lakes have crocodiles and then like I was like अरे मतलब मगरमच्छ वगैरह आ गया तो like I know my dad is a cop. But इधर बैज नहीं दिखा सकता. नहीं मगरमच्छ वो साहिब ने ओ साहब कैसे चल रहे. मगरमच्छ बोले मेरा खाकी तेरे से ज्यादा अच्छा है. वो बोले एग्जैक्टली मेरा खाकी से तो पर्स बनाता है पागल. जूता बनाता है मेरा. But you know this is of course not insulting the uniform in any manner, please. You know वो ट्रिप पे मत जाओ. हाँ वो ट्रिप पे मत जाओ यार. ऐसा मत सोचो. So I hear the splashing and I turn back and you know what I see? I see an old man like you know he had that Gandalf beard. मतलब वो लंबा डम्बलडोर बियर्ड रहता है सफेद छाती तक पेट तक जाने वाला दाढ़ी वैसा. और ट्रक का टायर का ट्यूब रहता ना वो ट्यूब में बैठा है वो. Okay, and he is pushing himself further in the lake. And all I can see is the top half of his body in the tube. Okay, and I'm losing my shit because first 5 seconds my childhood brain cannot comprehend कि मतलब क्या हो रहा है. And then I looked at him and he's calmly going. मतलब मगरमच्छ है नहीं कुछ नहीं उसको. And I just looked at my dad. I was like अरे उसको बोलो आजोबा को मालूम नहीं रहेगा because again I am a stupid kid. You know I want people to survive. So I'm looking at my dad and asking अरे बोलो आजोबा को पानी के बाहर निकलो बाबा ये मतलब एसल वर्ल्ड वगैरह सब थोड़ी निकल. You know मगरमच्छ रहता है. तो my dad like he was like नहीं he knows like you know. Because my dad knew what was happening, but I did not know. So I was pestering my dad, like because I didn't want to tarnish this memory. You know, after like 3 months, I'm out with my dad, and I see an old man just go down. And I didn't want to see that. मतलब as a child, I was scared कि वो हो जाएगा. तो मैं बोला कि अरे आजोबा को बोलो मगरमच्छ है करके. तो डैड फाइनली टू मेक मी शट अप यू नो बोला कि चल ये कन्वर्सेशन शॉर्ट करने के लिए उसको पूछ लेता है एक बार यार बाबा क्या सीन. तो आजोबा को देख के बोला कि आओ आजोबा. He was like I need to stop Gaurav from tarnishing this memory for me. Like Gaurav you are ruining my moment. Okay. I wanted to spend this with my son. I just got a chatterbox. So or maybe he would find the thing that he wants me to repress. So he ended up just asking like how आजोबा काय म्हणजे बाहेर काय चाललंय वगैरे करके माझ्या पोराला काळजी वाटली you know my child is afraid भाई कुछ होएगा. हाँ तो फिर मैं भी ऐसा थोड़ा it's like that
वो लायन किंग सिम्बा मोमेंट ऐसा मुफासा बोला फिर सिम्बा ऐसा छोटू सा पीछे आके हाँ अजोबा काय चालू है बाहेर या ऐसा ऐसा करके ओके सो आई टोल्ड हिम कि नाही मगर है लाइक crocodiles करके तो ही लाइक and he gave me an answer I did not expect like till now I can't understand that answer okay what he said was नाही मगर आपली मित्र आहेत दोस्त है फ्रेंड्स है अपना दोस्त लोग है रे मगरमच्छ कुछ नहीं करता है नो ये मच्छी पकड़ने वाला मैं अपना दोस्त है ऐसा आएगा तो हुड़ हुड़ करता है मैं हुड़ हुड़ क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तू हुड़ हुड़ किधर से कर रहा है above the water sound doesn't travel well in water मगरमच्छ को पानी के अंदर सुनाई देने वाला अरे हुड़ हुड़ बोला मैं जाता है वापस शी 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 ऐसा थोड़ी होने वाला है ब्रो and then I thought to like now when I like look at that memory think about that memory I realized that the amount of coincidental surviving this old man has experienced that he now believes कि ये दोस्त लोग है Yeah, in his experience he's just like आज तक तो नहीं काटा आज तक तो नहीं मरा है मैं तो मैं मरेगा ही नहीं आज तक तो कुछ नहीं किया मेरे को मतलब ये लोग मेरा दोस्त लोग है ऐसा मतलब ऐसा पानी के अंदर जाने के पहले चिल्लाता भी रहेगा ए आया रे मैं ऐसा करके he goes to the mother रो असली में रो रही है कि नाटक है he just sitting on the banks and another मगरमच्छ comes and is telling his दुखद कथा कि अरे घूमने को नहीं मिलता रे ज्यादा बारिश भी कम गिरा है ये साल and then he मगरमच्छ के आंसू मत दिखा फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट इवन गेट दैट प्रॉब्लम मगरमच्छ के आंसू बिकॉज मगरमच्छ पानी में रहता है ना ब्रो मतलब पानी से बाहर आएगा तो अच्छा मे बी दैट इज हाउ Yeah, the moistening of the eyes feels like they're crying. That is human beings projecting their sadness. ये कुछ dude, he's an apex predator. Why will he be sad? No, you know when that theory would have come up, like that proverb of crocodile, when one friend saw another friend getting eaten, you know, and the crocodile was crying, and he's like, "Hey, चल, तेरे को थोड़ी बुरा लग रहा है." Yeah, so I always, whenever I go for a hike or whatnot, and I look at the lakes, first of all. Amazing feeling you know it is a bit weird because you can see the dichotomy of it like वो दोनों पार्ट तेरे को दिखता है एक साइड पे फुल सिटी दिख रहा है you know concrete जंगल पूरा और दूसरा साइड पे on a good day you can see all the way till the pagoda in Borivali like Borivali Bhayandar Mira Road जिधर वहाँ का caves का ये टॉपिक बुद्धिस्ट टेम्पल है एक आई थिंक जैन टेम्पल है बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं कनेरी तो अपना अंदर आया बोरीवली नेशनल पार्क में ही है वो बट वो अंदर है लाइक दिस इज आउटसाइड ऑन द पेरिफेरी दिस इज इन द सिटी इट्स नॉट पगोडा इज नॉट विद इन द लिमिट्स ऑफ द नेशनल पार्क इट्स आउटसाइड द इट्स ऑन दैट साइड इट्स बोरीवली साइड वेस्टर्न Oh, so you can see from here to Borivali. बिकॉज वो गोडबंदर रोड ऐसा सर्कल करके जाता है ना तो वो हिसाब से बट यू कैन सी ऑल द वे ओवर देयर यू नो लाइक फकिंग ब्यूटीफुल मस्त एकदम you know it's all clean and whatnot and whenever I see that you know I always end up imagining वो लेक देखता है ना मैं हमेशा सोचता है कि अभी अगर मैं गया तो ऐसा वो मतलब वो शॉर्ट फिल्म्स में एंडिंग रहता है ना वैसा मैं अजोबा को देखेगा क्या उधर वापस या फिर पता चला कोई दूसरा जनरेशन आ गया यू नो यंगर गाय हु बिकेम एन अजोबा व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप आई हैव हैड few experiences like this only where I see जो तू बोल रहा है dichotomy of this and it always feels like a progress bar कि ये city ऐसा टी वो लोडिंग होता है दिखता है ना बट द प्रोग्रेस इज द सिटी क्रीपिंग इनटू द ग्रीनरी हाँ मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू कैन इमेजिन अ टाइम लैप्स हाँ या कि वो डी हो रहा है and the funny thing is all these buildings that are coming 90% of them I'm pretty sure have names of trees so and so forest so and so meadows ये woods वो woods वही है cedar maple oak tree सब जो अपने इधर उगता नहीं है वो सब झाड़ का नाम रखा है अपन अपना झाड़ काट के यूएससी है क्यों उधर का पेड़ इधर उगता है Oh, by the way, did you see that news bit dude that had come out? Yeah. Like in Mexico, Gulf of Mexico. First of all, the news bit that you are saying, I did not see it on news. So the Gulf of Mexico, there is a pipeline, underwater pipeline of oil. Correct. ठीक है, and that happened to explode. So it made a really nice picture of fire underneath water. I saw that explosion. Not even fire and explosion underneath water. It looked like there is lava, like the fire is so intense that it made the water look like lava. Like you know that image went viral, dude.
like the amount of explosions, and this is not the first incident in Gulf of Mexico. There have been many incidents, spills and whatnot. अरे मैं ये ब्रिटिश पेट्रोलियम का सीन हुआ था, and now this was I think Tex-Mex या ऐसा कुछ तो नाम है कंपनी का, and they are known to have certain incidents, problems मतलब ऐसा, and the amount of dude, Mexican people can't catch a break. Because explosions are happening on land because of drug cartels and whatnot, and then offshore also. You know. तेरे को पता है ये एक्चुअली मेरे को न्यूज़ पे नहीं दिखा. I saw this on some church group where people are like, look, the end of times is near. अरे बोला, dude, this is not an act of God. This is a human fuck up. Yeah, that's what it is. Why are you blaming this on God? Yeah, उसका कुछ गलती नहीं. कुछ गलती नहीं. वो उल्टा तुमको बोलता है यार, तुम्हारा घर का जब पाइप लीकेज हो रहा है तो क्या वॉल्स वेट होता है, तुम लोग अंडर वाटर क्यों लगाया? ये को क्या आइडिया है, कितना कॉन्फिडेंस क्यों है? Again that thing only ना dude, the fact that we want shit and we don't give a shit about nature, you know. And imagine इतना गरम था वो dude that it was looking yellow, like it was looking like a sun was coming out of the water. And imagine dude, like मछली पक गया रहेगा अंदर ही अंदर. Like my uncle got poached. The fish that they are catching already रवा फ्राई हो गया. हाँ already हो गया. वो लोग उधर एक बियर को लेगा, चकना की तरह खा लेगा. But that image that I saw, dude, it actually that WhatsApp group पे तेरे को जो message आया था ना, it sort of makes sense also. In what way? If you don't know the context of it ना, it looked like a portal to hell. Yeah. You know, it looked biblical in nature. Yeah. It felt like tada. क्या हो रहा है dude? Welcome. Like ऐसा दो सींग वाला devil आएगा. Like, hey guys, what's up? देखो मैं आ गया. मैं घर आ गया. शिनचैन. That would be the worst variation of the devil, you know. Devil as Shinchan. Shinchan with horns will come out as a. Oh, dude. That is a cartoon made by the devil, though. I feel like it's written by the devil. He's just a horrible kid. A bad kid. That is what the devil was also. Yeah. He was just a bad kid. Yeah. बट हाँ मेक्सिको में अनप्लान दिवाली हुआ है. प्लीज ऐसा अनप्लान दिवाली मत करो इधर उधर. हम लोग को पर छोड़ दो, हम लोग करेगा दिवाली बराबर, ठीक है. इंडियन लोग कर लेगा, ठीक है. तुम लोग दिवाली मेक्सिको में मत करो पानी में. The people in my building, like one of my neighbors or बाजू में नहीं देता है, इधर तो बिल्डिंग में, he had a different reaction to this. He said, you know, ऑयल का पाइपलाइन ये फटा है, चलो कहीं और तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, हम लोग अकेले नहीं है. दुख का साथी चाहिए. क्रॉस ओवर टू द साइड ऑफ सुख ना. खुश रहना थोड़ा गांडू. मैं भी 100 रुपया से ज्यादा भर रहा है, तू भी भर रहा है. वाह. फिर इक्वल हो गया. फिर ठीक है, फिर चलेगा. Oh man, but yeah, environment is going to shit because like we are the first generation जो कमरे के अंदर आके बोलता है कि फ्रेश एयर. हाँ. You know, वो वाला सीन. Exactly, वो हो रहा है. और उसका ही मेरे को that is what makes me enjoy these moments more. Like it's not just the pandemic or the fact that we are locked down that is making me enjoy the hiking, but the fact that whenever I see that view now of Sanjay Gandhi National Park, I almost feel a bit sad because I feel like मेरा जो expiry date देख के मैं डरा था, वो मेरे को अभी फॉरेस्ट पे भी दिख रहा है. समझ में आ रहा है तेरे को? क्योंकि मैं बचपन से देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा करके बाजू से पब्लिक कैप्चर किया लैंड. मतलब कोई जगह पे जो मतलब अभी मुलुंड का ही देख ले, वेयर आई लिव, दैट सबर्ब ऑफ मुंबई, दैट्स अ पार्ट ऑफ द संजय गांधी नेशनल पार्क का पेरिफेरी. और मैं एज आई सेड, यू नो, बचपन से डैड लेके जाता था, तो आई हैव सीन द फुट हिल्स, यू नो, द स्मॉल हिलक्स दैट आर देयर एट द बेस ऑफ द माउंटेन. दे स्लोली स्टार्ट डिसअपियरिंग. बिग सोसाइटीज हैव कम ओवर देयर, यू नो, एंड देन सोसाइटीज का बाजू में झोपड़पट्टी है. झोपड़पट्टी कैसे बना? जो उधर बनाने को आया था बिल्डिंग, वो सेटल हो गया. लेबरर लोग वो सेटल, वो लोग बेसिकली ऐसा अपना काम बनाया. बिल्डिंग खड़ा किया. अच्छा जगह है ये. और फिर बोला व्यू इज नाइस, हवा वगैरह बनाते अपना. वी नॉट टू मेक हाउसेस. हां, मतलब छाव भी रहेगा ब्रो. बिल्डिंग का छाव भी रहेगा, you know. So this thing of like slowly buildings encroaching and all, na, where I live close to there is another project of some big builder. Okay. And the rumor is always that कि मेरा area basically, the rumor is साल में एक बार कोई ना कोई leopard देखता है. You know what I mean? आता है वो, it's like leopard comes like ऐसा गाँव से रिश्तेदार आया ना, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त टाइप है, तो leopard always comes. So now
one of the selling points of the building was कि this is so close कि leopard रहेगा और leopard के लिए हम लोग electric fence बनाए हैं. Like that is the selling point. कि don't worry, we have a leopard. There is a big cat which can easily pick you up. Forget your child. But don't worry, you will feel like you're living in Jurassic Park. But don't worry, we have electric fence. There's a silver lining to that, don't worry. Tiri, tiri, tiri. Worst marketing campaign, don't. But it is actually not surprising to me. Why? Because all around the national park, the city has encroached so much कि वो man animal conflict होते ही रहता है. मतलब मेरा बिल्डिंग जिधर है ना, उसका पीछे ही वही गली में पीछे एक सोसाइटी है, ठीक है, पुराना वाला सोसाइटी था. मतलब वो पहले ही कब्जा कर लिया था. लाइक व्हेन आई वाज अ किड तभी ऐसा चार माले, फर्स्ट एक्सप्लोरर, हाँ वैसा ऐसा 4 माले का बिल्डिंग बनाया था वो, और उधर पब्लिक रहने को चालू किया. फिर कोर्ट में आया कि अरे फॉरेस्ट लैंड है. फिर कोर्ट बोला हाँ मगर 20 साल बाद तेरे को जाग आया क्या? अभी क्या कर सकता है तू? तेरे को नजर नहीं आया कि फॉरेस्ट सडनली गायब हो गया था? तो फिर वो लोग को मतलब वो केस नलीफाई हो गया. बट उधर से एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, एंड अभी भी तू देख सकता है. उधर नीचे वॉचमैन का लॉबी में जगह रहता है ना बैठने का, ऐसा टेबल वगैरह, वो वॉचमैन सोया है, ठीक है, और उसके पैर के नीचे वो लोग का लोकेलिटी का कुत्ता रहता है ना, सब मोती वगैरह जिसको भी रखा है वगैरह, वो सोया है. और रात को लेपर्ड आता है, कुत्ते को उठा के लेके जाता है, और वो सीसीटीवी में दिखता है. इट्स सीन दैट दिस लेपर्ड हैज कम इन, एंड you have to understand it's not like leopards really like you know dog kebabs, ऐसा नहीं है. It's just that they are so easy to hunt. लाइक अगर लेपर्ड बंदर पकड़ने को जा रहा है या फिर डियर पकड़ने को जा रहा है तो कितना कुछ काम करना पड़ेगा. तो वो हिसाब से मतलब सोया हुआ कुत्ता रहेगा तो उठा लेता है वो लोग फटाक से. और सोच अगर वो कुत्ता और डियर ये सब हंट कर सकता है तो इंसान क्या करेगा ब्रो? तू लेपर्ड के सामने रहेगा, क्या करे? कुछ क्या, तू भाग नहीं सकता है, तू चढ़ नहीं सकता है, तू यू कांट सर्वाइव. यू जस्ट हैव टू बी लाइक एक सिगरेट पीने का मौका दे दे बस. बाद में खा लेना ब्रो, ऐसा मस्त स्मोकी फ्लेवर आएगा. कबाब that is what is the case. But the man animal conflicts have increased so much कि this electric fence का idea it will become an eventual reality. You know, in fact मेंटेनेंस पे झगड़ा होएगा इस पे. हाँ मतलब in fact like it worries me so much कि I feel like 30-40 years down the line now the only wildlife we'll be able to see is like Disney films. Like Disney will make holographic representation. This is what a lion looked like, this is what a leopard looked like. वो ऐसा ही देख पाएगा पब्लिक. I was just thinking कि वो इलेक्ट्रिक फेंस पे कोई ना कोई वहाँ से बिजली चुरा रहा है. I'm just thinking that is the first thought that came to me. But ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला चीज़ हो ना, मेरे को एक बार याद, हाँ जैसे तू बोला ना बिजली चोरी कर रहा है, और सोच उसके वजह से कोई बच्चे को उठा के लेके गया, एंड देन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, अरे इलेक्ट्रिक फेंस सब लगा था, कैसा आया ये? और फिर पता चलता है फर्स्ट फ्लोर का ये बंदा, इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कराने का था, इसके लिए मोनू नहीं रहा. ऐसा सीन होएगा ब्रो. बट दैट इज व्हाट इज लाइक scaring me a lot, because you read a lot of this, you know, like the amount of exploitation that has happened in terms of just for natural resources, for land, because that is what human beings do ना. ऐसा छोटा सा लैंड ले लिया और फिर बोला ये मेरा, आज से ये मेरा जगह है, ये मेरा लैंड है, इधर मैं ही सब करेगा, इधर गांडुल भी मेरा, इधर सब मेरा. बट द थिंग इज दैट डिल्यूजन हैज गॉन फर्दर कि अभी हम लोग बोल रहे हैं ये हवा मेरा है. पांचवा वाला छठा वाला पे ये हवा मेरा है, ये हवा मेरा. द अमाउंट ऑफ ह्यूमन अग्रीमेंट रिक्वायर्ड ओवर कि ये मेरा है इज क्रेजी डूड. बहुत बहुत ज्यादा डूड. और मतलब वो ऐसा वियर्ड अग्रीमेंट रहता है, लाइक मतलब देख के सिर्फ हाँ ठीक है ये तेरा तो ये मेरा, हाँ तू मेरे इधर, हाँ मैं यहाँ पे रहेगा, हाँ ठीक है, और अपन दोनों अग्री किया है, ठीक है, बाकी सब गांड मराने है, अपन दोनों अग्री किया है. तो उसके वजह से मेरे को टेंशन आता है कि आगे वाला जनरेशन वो लोग को मतलब ये एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ का रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और उसका इफेक्ट्स भी दिख के आ रहा है डूड. बहुत खराब इफेक्ट्स दिख के आ रहा है. लाइक आई रेड रिसेंटली इन द न्यूज इट हैड कम आउट दैट देयर इज अ हीट वेव in Canada, no? Canada, Europe, like that part. The Western civilization is in the oven. Again. वहाँ पे मतलब मैं पढ़ा कि पब्लिक ऐसा बेहाल लाल हो रहा है, ऐसा मतलब पक रहा है बाहर, गोरा लोग फुल लाल हो रहा है बाहर. हाँ, और टेम्परेचर क्या है मालूम है? 49.5 डिग्री सेल्सियस.
कितना बोला मैं 49.5 डिग्री सेल्सियस Fuck. just to put this in perspective. Okay, just to put this in perspective. ये गीजर का पानी है रे. ना सकता है. अपन इतना पोल्यूशन किया है कि अपन आसमान को गीजर बना दिया है. इतना पोल्यूशन किया अपन. एंड जस्ट टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, मुंबई में विच इज अ पोर्ट सिटी जिधर ह्यूमिडिटी बहुत है, उधर 35 में पब्लिक का हाल बेहाल हो जाता है. मतलब 4 बार नहाता है पब्लिक. यू फील लाइक यू आर पेरिनियली वेट, यू नो. इधर ऐसा सीन है ब्रो. और इमेजिन अपने को 35 डिग्रीज में इतना फटता है. 49.5 में क्या मर गया रे पब्लिक. 100 जन 150 जन मर गया गर्मी से ब्रो उधर. अभी आदमी मच्छर बन रहा है. मतलब अरे इमेजिन उधर जो इंडियन लोग रहने को गया रहेगा, वो लोग का क्या सटका रहेगा. अरे इधर भी गर्मी. मैं गर्मी छोड़ के आया ब्रो इधर. क्या है स्मोक इधर है यहाँ का. ठीक है. मेरे को लगा तुम लोग आइस हॉकी खेलता है. वो डूड ऐसा बीच में जुप अंदर गया. आइस हॉकी पूल है अभी. वो रिंग ये क्या अंडर वाटर भी हॉकी होता है ना. नहीं वो कुछ तो होता है ना पोलो. हाँ अंडर वाटर पोलो. सॉरी अंडर वाटर पोलो. हाँ नहीं वाटर पोलो. सॉरी वाटर अंडर वाटर पोलो तो बहुत. नहीं वही करता ना बोलो इसमें. नहीं अंडर वाटर पोलो ने वो डाइवर लोग सिलेंडर दे रहा है एक दूसरे को. पोलो नहीं है. ग्रेट बैरियर रीफ. अरे अटक गया रे. ए मेरा खत्म हो रहा है, सांस खत्म हो रहा है, दे दे. टाइम प्लीज नहीं है. So anyway, this I'm pretty sure dude, all of the Indians like 49.5 degrees, it's unheard of, man. Especially in Canada and Europe and whatnot. If you're thinking about it, and that is what makes me think, you know, in the longer run, you know, we like global warming is a problem. I get it. एक दो वीडियो आइडिया है लेकिन. Like 5 hot tips to take care in hot weather. Like, you know, how to behave in hot weather. Like this can be a video that will trend in Canada. How to deal with high temperature. मतलब इंडियन लोग बनाएगा. इंडियन लोग बनाना चाहिए. अरे like yeah, we know this. Like ऐसा कनेडियन एम्बेसी को भेजने का वीडियो, ऐसा टैग करने का कनेडियन एम्बेसी को कि hashtag heat wave. हाँ हम लोग को मालूम है ब्रो, हम लोग पैदा हुआ है हीट वेव में. तू सुन हमारे साथ प्रोज. देख हम लोग क्या करते हैं मालूम है. सबसे पहले तो इफ यू वांट टू बैटल हीट वेव इन कनाडा, एक घर में 5 फ्रिज चाहिए मिनिमम. 5 फ्रिज तो चाहिए. ऐसा मतलब हर एक फैमिली मेंबर के लिए एक फ्रीजर. यू नो जैसा 35 के ऊपर गया वैसा फ्रीजर खोल और सर डाल अंदर, बस खत्म. फैन लगाएगा, रेगुलेटर तोड़ के निकाल. और तुम्हारे इधर वैसे भी गांजा लीगल है. तुम गांजा फूको, सर फ्रीजर में डालो और इमेजिन यू आर इन आर्टिक. इमेजिन पेंगुइन है बाजू में, बच्चा ऐसा जाते रहेगा तो उसको पेंगुइन कॉस्ट्यूम पहना दे. नहीं मत पहना पागल, गर्मी से मर जाएगा. पेंगुइन हिल रहा क्यों नहीं है. This is what and global warming is doing. Killing penguins and kids in penguin costume. But since you said Arctic का, उधर it seems Antarctica का भी temperature is 18 degrees Celsius, dude. क्या बात कर रहा है? That is the temperature. Antarctica is like has got like a Bombay winter temperature. Parts of Antarctica. मतलब नोएल मेरे को एक बात बता, साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दोनों फर्क नहीं है. नहीं हाँ बराबर. बट लाइक हियर मी आउट, लाइक उधर साइंटिस्ट लोग ऐसा रहता है ना इन स्टेशंस टू चार्ट, टू अंडरटेक ऑल ऑफ द, हाँ कि टेम्परेचर वेरिएशंस क्या है, विंड का क्या है, वो सब चेंजेस क्या हो रहा है वगैरह. दे आर लाइक डूइंग रिसर्च एंड व्हाट नॉट, लाइक अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड अगर 18 डिग्री रहेगा तो वो लोग डूड स्विमिंग ट्रंक पहन के आएगा बाहर. हाँ so good day to jog. हॉट योगा हो रहा है बाहर. वो लोग 6 महीना का कंटिन्यूस सूर्य नमस्कार कर रहे हैं. ऐसा बियर वगैरह बर्फ में डाल के निकाल. बियर में ब्रो. एक पोलर बेर दे रहा है बियर. अरे but the polar bear must be just dizzy. Like yeah, we can ride them now. गर्मी है ब्रो, गर्मी है. Yeah dude, sweat it out. that is how we will make polar bears tame. We will give them water. No, we will give them water. So पानी पीने का है, आजा. You know, that is how we'll domesticate them. Yeah. The thing is that ना जिसका हस्की वस्की रहता है ना, साइबेरियन हस्की, वो लोग ऐसा एक छोटा पूल लेता है, उसमें बर्फ डालता है.
पहले हस्की डालता है फिर ट्रीट अ साइबेरियन हस्की लाइक अ बियर. अरे सोच कनाडा में साइबेरियन हस्की लोग का भी कितना सटका रहेगा. हाँ. वो लोग तो बोलता रहेगा डूड इधर भी गर्मी है, अभी सीधा साइबेरिया में ही जाना पड़ेगा. और किधर नहीं. क्या वो षड्यंत्र है हम लोग को निकालने को यहाँ से. सॉरी साइबेरिया में भी नहीं जा सकते. साइबेरिया का भी टेम्परेचर बढ़ गया, मैं पढ़ा. हाँ उधर भी मतलब पब्लिक जो लोग को -60 -40 का आदत था, उधर भी अभी मतलब नेगेटिव से निकल गया टेम्परेचर. लाइक दे आर इन द डिग्री सेल्सियस सिनारियो, यू नो. तो मतलब ये एवोल्यूशन में हस्कीज निकल जाएगा आई थिंक. हस्कीज विल नो. अरे गर्म हो जाएगा रे सब. किधर बैठेगा. इतना क्यूट डॉग गया, अब भी लोग ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान देगा. हाँ. डॉग्स गया क्यूट डॉग्स गया. अरे मेरा वीडियो कैसा बनाएगा मैं इंस्टा पे. मैं कैसा बलून किसको बांधेगा उड़ाने के लिए. But what is happening is the temperature is increasing and whatnot everywhere, dude. And of course, people are treating global warming. The word global is in there, so it's a threat to everybody. Like, well, everybody say yeah, a lot of species and whatnot, but human beings प्राइमरीली कि मतलब तुम लोग पहले मरेगा गांडू लोग, यू नो, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से. तुम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते. हाँ ठीक है, तुम लोग को देखा है हम लोग. तुम लोग के वजह से ही हुआ है. लाइक ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी इज दैट वन पर्सन इन द ऑफिस हु जस्ट हॉग्स द रिमोट, यू नो. सो नाउ एवरीबडी एल्स इज कमिंग टू गिव वो अंधा टपली ऐसा सर पे डाल के ह्यूमैनिटी को क्या रे गांडू डूब अभी साले, बड़ा ना ओशन. चूतियागिरी करते बैठता है साला तुम लोग. बट इट्स गेटिंग सो बैड एंड आई गेट इट. ओके, इट्स अ थ्रेट एंड व्हाट नॉट, बट hear me out. Okay, I am of course not a climate scientist, but it is a thought that I am indulging a lot. Okay, so global warming is definitely a threat, but will it like change climates completely? Like मतलब अगर उधर प्लेसेस, हाँ मतलब अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, अगर कनाडा में 49.5 है, यू नो, अगर जिधर वो ये ग्लेशियर के बदले बीच बन गया है, कॉकटेल शैक आ रहा है उधर वगैरह, ऐसा सब सीन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गोवा में बर्फ पड़ेगा क्या? वो एक मस्त चीज रहेगा. मस्त चीज रहेगा डूड. अरे गोवा में तू बागा पे एक तो नहीं बागा तो लौड़े लगे उसके, बट अच्छा बीच पे ऐसा, यू नो, अश्वेम वगैरह ऐसा किधर जाएगा मस्त पे की स्केटिंग, आइस रिंक में स्केटिंग कर सकता है. जैकेट विकेट पहन रहा है तू सर्फ करेगा वहां से जुप सीधा आइस स्केटिंग. नहीं सर्फ तो नहीं कर पाएगा डूड. ठंडी में जाम हो जाता है डूड. ऐसा मतलब तू, यू नो, ठंडी में सर्फ करने का एक फायदा है, यू गेट ग्लूड टू द बोर्ड. चिपक जाता है तू बोर्ड को. नो वाइप आउट. उल्टा होगा तो भी चिपका ही रहेगा तू. तो विल दैट हैपन? वन थिंग आई वाज थिंकिंग, लाइक देयर इज आल्सो लाइक विंड प्रेशर चेंज एंड ऑल, नो, लाइक वो भी अफेक्ट होता है बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर्स मीनिंग डिफरेंट एयर प्रेशर. हाँ बराबर मतलब अलग. आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट इफ बॉम्बे जस्ट बिकम्स अ विंडी सिटी. Okay, a city where लोग कचरा फेंकते हैं becomes a windy city. अरे रे 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 जो ऐसा आसमान में देखेगा ऐसा, oh my neighbors full history of what he's been using all week. ये कितना हैप्पीडेंट खाया है देख रहा है मैं. But that is what. बच्चा हो गया डायपर. Another one, dude. Come on. It will be a legit thing because this is truly a big part of the whole global warming. The pollution thing is a big problem, dude. Because my God, we like to litter. And see, I get it. Just to put this in context of it properly, it's not that Western countries don't litter or they don't have garbage issues and whatnot. But you know what they do? They use money and send their garbage to third world countries. You know, ऐसा नहीं कि वो लोग इतना साफ सुथरा ऐसा. There are nice parts of the world which act as the rug. हाँ मतलब ऐसा झाड़ू उठा के कचरा वो कोने में डालता है, ऐसा करता है वो लोग. मेरा हॉल साफ है, वो कोना जिधर इंडोनेशिया और फिलीपींस है ना, उधर घान है, उधर में घान डालता है, ऐसा वाला सीन. तो लिटरिंग, बट that is of course not an excuse for us to litter. You know, it doesn't make any sense. In fact, when I go to Sanjay Gandhi National Park also, dude, how much littering I see, you know. क्या फेंकता है public. क्या सबसे पहला तो, you know what they found the most when the condoms. Public again all
all global warming problems can be solved if we are just open about some things. हाँ. Done. अरे मतलब इतना प्रेशर है ना अपने इधर, मतलब ऐसा यंग कपल्स को कि चोदने को नेशनल पार्क जाता है पब्लिक. क्या सीन है मतलब ये. Dude, क्या अपना एक फ्रेंड है ना दिव्या खरनेरे करके, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाया था अबाउट कपल्स हु गो एंड लाइक मेक आउट एंड ऑल ऑन द वेव ब्रेकर्स ऑफ द नरीमन नरीमन पॉइंट पॉइंट. दादर सोच चौपाटी. डूबने को रेडी है. डूबने को रेडी है टू गेट लकी. तो As long as I reach second base, it's चलेगा. okay. If I reach second base, I'm ready to go to fourth base of the ocean. Yeah. That is what. The sea swallowed. She, I got a very dirty joke. The sea swallowed me, but before that, I swallowed something else. I didn't want to say that. That's why I thought- did. Dude, I thought if I say that, you'll be like, she, क्या No, कर no, रहे no. हो? And they're like, ठीक है, no. okay. I saw that on your face and I was like, no. No. ये बोल सकते हैं, चलेगा. Context में चलता है, dude. Context में चलता है. But इतना लिटर करता है ब्रो कि हैप्पीडेंट, सिगरेट, बियर का बॉटल, दारू. अबे दारू का ठीक है, तू पी दारू, ठीक है. I mean, I'm not condoning it, but if you are one of those people who has decided कि मेरे को पीने का है, हाँ. मेरे को व्यू भी चाहिए, मेरे को दारू भी चाहिए, मैं मजा करने गया क्योंकि लौड़े लग गए दुनिया के और मेरे हाँ, जिंदगी तेरा के जो भी है, ठीक कुछ है. भी है, हाँ. लेके जाना वापस. हाँ. रख रहा क्यों है दारू उधर. As it is, we have so much baggage and all. हाँ मत देख, तू लेके आया ना बॉटल, हाँ. तू तो अभी खाली भी किया है पागल, अभी तो हल्का भी है और हाँ. वजन भी नहीं है. क्यों? देख तू उठ के जाते वक्त तू मतलब ऐसा वजन लेके जाने को तैयार है कि मैं ऐसा फुल 4 लीटर बियर वगैरह उठा के लेके जाएगा नेशनल पार्क में, क्योंकि मेरे को प्लान है ये. हाँ मजा करने का है, मेरे को ट्रिप करने का है, ठीक है. पीने के बाद अंदर बॉटल फोड़ने का जरूरत क्या है? क्या है, क्यों है? तोड़ता है वो लोग. अरे फेंक के तोड़ देता है रे बॉटल. और ये गुस्सा इधर क्यों निकल रहा है? तेरे घर में तोड़ना. इनफैक्ट बॉटल भी मत तोड़, जो तेरे को गुस्सा दिला रहा है उसके उसको सर तोड़. नहीं उसको तोड़, बॉटल भी क्यों तोड़ रहा है? रिसाइकल करना लौड़े, उसमें और बियर आएगा. खुशी बांट. हाँ खुशी बात नहीं यार, चुतियागिरी करते बैठे ऐसा. और हर एक स्ट्रैटा का दारू है, ऐसा नहीं कि मतलब यू नो देयर विल बी सम पीपल या दिस इज पुअर पीपल, या पुअर पीपल लिटर एंड व्हाट नॉट, या अनएजुकेटेड फॉर हर. मैं सब बॉटल देखा, लंदन पिल्सनर से लेके होगार्डन का कैन, ये वैरायटी देखा है मैं उधर, ठीक है. तो तू मेरे को बोल मत, कोई भी झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा होगार्डन नहीं पीता है, ठीक है. मतलब दोनों हरामी लोग हैं. जो टावर में रहता है वो भी हरामखोर, जो सावली में टावर का सावली में झोपड़पट्टी में वो भी हराम. Beer bottle, daru bottle, cigarette वगैरह, and all of these things, you know, I'm again forest fire. Hope that doesn't happen, but that still brings me to the point कि इतना लिटर करता है. एंड लिटरिंग का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तू हैप्पीडेंट का रैपर संजय गांधी नेशनल पार्क पे फेंका, हाँ ऐसा चढ़ते वक्त तेरे को लगा वो मेरे को हाइड्रेशन चाहिए, मैं खाएगा जो करके चढ़ेगा वगैरह. हैप्पीडेंट से हाइड्रेशन. हाँ लाइक चुतिया लोग रहता है डूड, ऐसा मतलब चबाते रहेगा थोड़ा तो दैट स्पिट थिंग विल हैपन, आई विल नॉट गेट व्हाटएवर दैट स्टूपिड शिट इज, और मे बी दे आर जस्ट एसहोल्स हु वांट टू डू दैट. बट एनीवे इफ यू आर डूइंग दैट, यू थ्रो द रैपर ऐसे ही, ठीक है, प्लास्टिक का रैपर है, एंड दैट रैपर will survive longer than you. तू मर जाएगा लौड़े तो भी संजय गांधी नेशनल पार्क पे वो हैप्पीडेंट का रैपर रहेगा. तेरे को समझ रहे हैं? 100 साल 200 साल रैपर उधर ही रहने वाला है ब्रो. The thing is ना, ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक होता ही नहीं है ना. 500 साल लगता है. और डिकम्पोजिशन नहीं होता, सॉरी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट सम सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक्स दे ब्रेक डाउन, दे डोंट डिकम्पोज आल्सो, बिकॉज स्मॉलर पीसेस. हाँ, बिकॉज डिकम्पोजिशन एज अ वर्ड इट्स अ नेचुरल हाँ साइकिल नो, हाँ. कि मतलब सड़ गया देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोबियल ब्रेक डाउन एंड व्हाट नॉट. प्लास्टिक के साथ वैसा नहीं होता ब्रो. ऐसा नहीं होता है. Dude, मेरा एक थियरी है कि इफ लाइक यू नो आवर सिविलाइजेशन इज फाउंड लाइक हरप्पा एंड व्हाट नॉट, दे वोंट सी दैट प्लास्टिक वाज अ बैड थिंग. They will be like, अरे अभी तक टिका है. These guys were geniuses. They will be like, अरे नहीं ये गलती था अपना. मत करिए. बहुत बड़ा गलती था. We need to remake this. और वो लोग चालू हो जाएगा. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डूड. प्लास्टिक मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्रो. प्लास्टिक का सीन ऐसा है कि एक तो प्लास्टिक का वो सीन भी है ना ब्रो कि प्लास्टिक मेक्स यू फील सेफ. हाँ वो इट्स अ साइकोलॉजिकल क्रच. एग्जैक्टली. मतलब मैं बचपन से ना जो बाहर का ऐसा भजे वजे तलता है वगैरह, नो वन ट्रस्ट देम, क्योंकि वो लोग का चीज छुट्टा रहता है, लाइक इट इज ओपन. मतलब फूड दैट दे आर सेलिंग, या फरसन वगैरह जो भी बनाया रहेगा, द डे ही पैक्स इट इन प्लास्टिक, हाँ पब्लिक प्लास्टिक एंड प्योरिटी ना
goes hand in hand. Purity and safety. हाँ. These two things. Even a condom, dude, made out of plastic. Safe. Have safe sex. Wear plastic. That is what. हाँ, कोई भी चीज को अगर अच्छा रखने का है तो हम लोग के दिमाग में प्लास्टिक आता है. प्लास्टिक ही आता है. फोटो रहेगा. I have seen like idols of gods and all have plastic cover on. What an insulting thing to do, na? You need this. ऐसा थोड़ी करता है यार कोई. My thing is that, you know, if there's any time what do you say, any person just suddenly becomes rich और वैसा महंगा पेंटिंग खरीदेगा उस पर भी प्लास्टिक चढ़ा है. देखना भगवान के इस पे तू ऐसा चढ़ा है प्लास्टिक, भगवान चमाट नहीं मारेगा क्या? क्योंकि उसको तू दिखेगा ही नहीं. क्लाउडी दिखेगा ना सब. क्या रे इसका शक्ल क्लियरली नहीं दिख रहा है, एचडी में नहीं दिख रहा है. अभी बोल मत तू मेरे को तेरा प्रॉब्लम दिखता नहीं है, मेरे को तेरा प्रॉब्लम दिखता नहीं है. साले तू चढ़ा है प्लास्टिक. तू चढ़ा है प्लास्टिक मेरे पे. अब मेरे को क्या मालूम किसका लाइफ पे काम करने का है मेरे को. मैं आशीर्वाद दिया बाजू वाले पे गया. मैं भेजा था अपने एंड में. मैं मेरा काम किया है. तुम लोग इंसान लोग झक मरा है, मैं मेरा काम बराबर किया है. That's the thing. I think, you know, the whole thing of like plastic डालो safe रहेगा, plastic डालो safe रहेगा. We are covering the earth also with plastic for that reason. ऐसा बो बांध के गिफ्ट करके दे देगा. कितना कचरा, इतना और उसका कुछ कर भी नहीं सकते ब्रो. मतलब कितना सारा मूवीज में देख बताया भी है. ऐसा वॉली बोल के एक मस्त मूवी आया था बहुत टाइम पहले 2008 या कुछ, तो मस्त ये था. पिक्सार. इमेजिन कार्टून मूवीज हैव टू शो कचरा कम करो पागल लोग, नहीं तो पूरा दुनिया कचरे जैसा दिखेगा. यू नो, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज शोन ना. लाइक वॉली एज अ रोबोट जस्ट गोज एंड compacts all the garbage and stacks it and whatnot, and the humanity as a species has left. You know, that is the plot of it. And इतना सब बता तू. मैं एक दिन ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मेरा घर पे ऐसा जस्ट कि मैं जो भी मंगाता है, जो भी वापर रहा है, खाने का बोल सामान, तेरा सिगरेट मंगाया है, फिर ये यू नो कितना प्लास्टिक जमा हो रहा है और कितना प्रोसेस कर रहा है. मतलब कितना मेरे वजह से प्लास्टिक मैं यूज कर रहा है. कितना मैं प्लास्टिक यूज कर रहा है, यू नो, ड्यू टू माई हैबिट्स इन जनरल एंड व्हाट नॉट. और 2 दिन के लिए मैं इकट्ठा करने का कोशिश किया वगैरह. एंड थर्ड डे आई लुक्ड एट इट एंड आई इमीडिएटली आस्क्ड माई मॉम लेट्स रिसाइकल. क्योंकि इधर मेरे को घर पे बैठे बैठे गिल्टी लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन में जूस का बॉटल, सिगरेट पैकेट का प्लास्टिक, फिर तेरा कुछ लेके आ रहेगा बाहर से सामान वगैरह. अरे चिप्स विप्स वगैरह, चिप्स, एप्पल आता है प्लास्टिक में ब्रो. अभी एप्पल मंगाया मैं. क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ना. पानी हम लोग प्लास्टिक में बेचते हैं. पानी भी प्लास्टिक में ब्रो. ये जान है. आई एम किलिंग अस एट द सेम टाइम. मतलब that is going to be a big thing for people to solve, you know, as far as the whole plastic conundrum is concerned. कुछ तो लगने वाला है अपने को उधर. And like I feel like now most people don't even know that this problem exists in general. Like if you look at the world population in general, ठीक है, क्योंकि I remember this when I was 10 or something. I was just going to my village, ठीक है, and पूरा हाइप अप किया था मेरे को कि गाँव बहुत मस्त है, क्लीन है एकदम, इधर ये नहीं है वो नहीं है कुछ नहीं है, यू नो, तू जाएगा तू सिटी की तरह बिल्कुल नहीं है. सो वी आर गोइंग बाय द ट्रेन, ठीक है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग. आ गया, पास में आ गया. आई एम लुकिंग आउटसाइड द विंडो एंड व्हाट नॉट, एंड आई सी लाइक, यू नो, ट्रेन इज गोइंग फास्ट बट आई कैन सी दैट देयर इज अ रोड नेक्स्ट टू इट, एंड लाइक रोड के बाजू में ऐसा मस्त अलग अलग कलर का फूल है. तो देन आई कॉल माई ग्रैनी, आई लाइक which flower is this? What flower? I just looked carefully. The train started slowing down और वो ऐसा फोकस में आया, चीज़ें सब प्लास्टिक है. अरे बाजू रोड नहीं पहुंचा इधर, प्लास्टिक है, लेकिन डांबर का रोड नहीं है, प्लास्टिक है लेकिन वहाँ पे. एंड यू गो एंड सी लाइक ये सिर्फ हम लोग को चाहिए कि विलेज अच्छा है, ये है, हवा मस्त है. विलेज का प्रॉब्लम रहेगा, नो वी आर डेवलप्ड नाउ. हम लोग को कंक्रीट, वी हैव कंक्रीट फॉरेस्ट, बिकॉज गेस व्हाट, कंक्रीट फॉरेस्ट में सांप नहीं आता है. मेरे घर पे सांप आता है. अरे नहीं आता है, सांप आता है. मेरे इधर वगैरह थाने साइड, मुलुंड साइड, ये जो भी सबब्स बाजू में रहता है ना, वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सीन आता है वो. मगर फिर गाड़ी के नीचे कुचल के मर जाता है. वैसा सीन लोग कर देते हैं. इलेक्ट्रिक फेंस है अपना. बट as far as this plastic ka thing is concerned, you're talking about the tarmac ka thing. I had seen one video. I do not know how feasible it would be, but there is one company which is processing all of the plastic in such a manner that they are making roads out of like recycled plastic which they have turned into like some sort of. एक चंडीगढ़ में और दिल्ली में, मेरे को याद नहीं है, somewhere over there is one like
major road that is made of plastic या ऐसा कुछ होता like reprocessed plastic ऐसा कुछ होता. I have an amazing remember idea. that. हाँ I have an amazing idea. हाँ. Okay, which is amazing only for both of us or me rather, but still. अपन एक काम करते ना, हाँ ऐसा मुंबई में जो भी प्लास्टिक विस्टिक जमा होता है ना, हाँ वो लेके ये टेक्नोलॉजी जो भी बना रहेगा रास्ता सा, वो लेके पॉट होल्स भर देते क्या बोल रहे हैं? क्योंकि देख मेरे को तो लगता है मिनिमम 500 टन प्लास्टिक तो इस्तेमाल हो जाएगा मिनिमम. इतना गड्ढा तो है इधर उधर आजू बाजू में होगा और काम में भी आ जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा सीन्स. यू नो मेरे को भी कम गिल्टी लगेगा कि मैं ऑरेंज जूस मंगाया. But there is one bump less. yeah. But there is one thing that my mom tuned me into, and a lot of people are doing their bit also. You know, or not a lot. I would rather say a few people are doing their bit. But there is this one organization. I'll get their name for the next episode. What they do is they every fortnight or once in a month they will schedule a couple of stops around the suburb. लाइक यू नो मुलुंड वेस्ट में अगर आएगा तो मैं हम लोग ये जगह पे ये टाइम पे आएगा. किधर और तो एंड दे हैव टोल्ड हाउ you get all of the plastic that you have, you know, process it in such a manner that, you know, wash it, clean it, empty it and whatnot and get it. All of the milk packets and whatnot, all rinse वगैरह सब करके लेके आओ. And then they take all of that in order to recycle it and make fuel out of it. And that fuel they use to give to, you know, tribal children and whatnot. पढ़ने के लिए वगैरह. हाँ मतलब जो लोग को actually मदद लगता है वगैरह ये सब का. तो that is also something that people can be, you know, small things bro. Small things, do it. No. डू इट, रिसाइकल. नो लौड़े लगेंगे नहीं तो समझ रहा तुम लोग को बहुत बहुत प्रॉब्लम होएगा. बच्चे लोग को सांस हाँ तो सांस लेने को नहीं होएगा, ये नहीं वो नहीं. एंड देयर इज अ सेल्फिश मोटिव हियर. ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी यूनाइटेड नेशंस फ्रंटियर. मेरे को जितना जीने का है ना अच्छा सांस लेके जीने का, ठीक है. ऐसा एग्जॉस्ट पाइप मुंह में डाला है ऐसा नहीं चाहिए मेरे को. दैट इज व्हाई इट्स एज सिंपल एज दैट. दैट्स नॉट अ ड्रग यू वांट टू डू. हाँ, that's not that's a shit drug, dude. It's terrible. But I do hope, man, it changes. And I always end up thinking, what if there's a parallel Earth which is just fucking beautiful? Yeah, it has no humans. It has elves. Oh, Lord of the Rings वगैरह का elves रहता ना. All nature, la 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 ऐसा. Singing to और गाना गाता और ऐसा. हाँ ऐसा पत्ते वत्ते में से ऐसा वेज बनाया है ऐसा सब वाला पब्लिक, ना सब रिसाइकलिंग, एवरीथिंग स्टार्ट टू एंड. What you're saying ना, I hope people work and all. I know this much कि my school का जो generation है वो लोग मेरा बैच तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज हम लोग का बैच का EVS टीचर टपरवेयर बेचता था. क्या अरे oh dude I remember this one time में पेपर ओपन डे में पेपर. see first of all तो EVS as a subject, okay, letter grade subject, ठीक है, you can't fail. क्या मतलब you know ऐसा मतलब basically I get it. It's like a very weird like हाय तेरे को देखने का भी नहीं है ऐसा करता. That is what EVS teaches you, to ignore the environment. You start ignoring from first only. क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना. एक तो ग्रेड है, तेरे को मैक्सिमम C चाहिए, चल निकल. I know what a biogas plant is based on diagrams of the topper in my class. That is all I know. और मैं बनाया था biogas, dude, diagram अपना पेपर. मेरे को full 10 marks मिला था. क्यों? क्योंकि teacher on the open day used to bring biscuits or something in a Tupperware box. और 10 marks देख के मेरी मम्मी खुश. So she's like, teacher अच्छा मस्त 10 mark आया उसको इसमें वगैरह. हाँ आप बिस्किट लो ना. ये अच्छा डब्बा है ना, फ्रेश रखता है सब चीज. कितना तू सेल. मेरा EVS का पेपर was sales pitch. तो 5 डब्बा कोर्डेरो फैमिली 5 डब्बा 6 कर दो ना. आपको ये क्रिसमस का टाइम पे स्वीट बेचना रहेगा तो इंप्रेशन बनेगा. टपरवेयर का डब्बा में आप भेजोगे तो प्रीस्ट को केक भेजना रहेगा तो इसमें भेजो. ऐसा थोड़ी you know, अच्छा लगेगा. एक काम करो चर्च में बांट दो. But that is what shows you why there is so much apathy where people don't give a shit about the environment, because we just like to go to hill stations and have selfies and whatnot. तभी मजे आते हैं कि वाह 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 हवा आया थोड़ा, वाह 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 बंदर दिखा थोड़ा, ऐसा सब, और फिर झक मारा. You know, and that's basically because how our approach is to EVS. Because हम लोग के लिए वो पूरा environment वगैरह भी एक सर्विस है. देख लिया बस. There are इतना ही है. 2 subjects that I remember when I was in the school we used to just laugh at. You know,
kids used to make fun of it legit. One was moral education. मतलब उधर ही इमोरलिटी दिख गया कि ये नहीं होने वाला है, यू नो, सिर्फ डिग्निटी ऑफ लेबर वगैरह बातचीत करने के लिए, नहीं तो ये ऐसा ही दिखने वाला है, सो वो तेरा क्या बोलता है, मॉरल एजुकेशन और ईवीएस, और ये दोनों का बहुत जरूरत है अपने को अभी दोनों का बहुत, और बोथ गो हैंड इन हैंड ऑल्सो, यू नो, दैट्स द थिंग अबाउट स्कूल्स, यू नो, लाइक दे डोंट फोकस ऑन दिस, you know, and it is a nice thing to do. Nursery वगैरह रखो थोड़ा बहुत छोटा सा, like my school तो I remember it had like nothing, like just पढ़ाई, हाँ, मतलब सिर्फ वो पूरा खर्चा डेस्क पे, हाँ, मतलब हम लोग का ग्राउंड भी नहीं था, हम लोग स्कूल को ग्राउंड नहीं था, like I had studied like in two places, no, like one was अपना इधर मुंबई में जो पढ़ाई वढ़ाई हुआ था, it was like a small कॉलेज अपना स्मॉल स्कूल, ओके, जस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और कुछ नहीं था उधर, एंड इट वाज अ वेरी नाइस रेप्यूटेड स्कूल एंड व्हाट नॉट, दैट टाइम स्टैंडर्ड्स वगैरह और वेरी हाई व्हाट नॉट, बिकॉज पब्लिक पढ़ाई करता था, 90% 92 आता था, क्यों, क्योंकि कंपाउंड ही था, ग्राउंड था ही नहीं, लाइक कंपाउंड मतलब ऑफिस था वो, हाँ स्कूल नहीं था, ऑफिस था, 10 बाय 10 का कंपाउंड था ब्रो, ओके, इसके लिए हम लोग पीटी में भी ना ज़्यादा से ज़्यादा वॉलीबॉल या फिर कबड्डी खेलता था, दैट इज इट, और कुछ खेल ही नहीं सकता है, फाइट फॉर स्पेस, हाँ, और कुछ खेल ही नहीं सकता है, वॉलीबॉल खेलते हुए पब्लिक जोर जोर से फेंकता था क्योंकि जगह नहीं है खड़ा रहने को, हट इधर से, यू नो, तेरे को वॉलीबॉल बनाता था, इतना कॉम्पिटिटिव, इधर मत आ, उधर जा, उधर मत आ, इधर आ, बोला, बट दैट इज व्हाई लाइक व्हेन आई वाज अ किड आल्सो दैट वाजंट अ पार्ट, ग्राउंड है फुटबॉल खेलने, बट देन लाइक फॉर 2 years you know, I studied at a military school, okay, because as I had mentioned, my dad was a cop, mom was a cop, and I'm pretty sure my dad's job was getting to him to such an extent that my mom was like, अरे नहीं इस पे मतलब ये थोड़ा न्यूक्लियर फॉलआउट में गौरव इरिटेट हो जाएगा, मतलब ये फुकट में रिप्रेस होके क्या कुछ तो, यू नो, भलता ही सीन होएगा, ये दड़पन में आके डरता है फट्टू साला, मतलब तेरा मॉम सोचा रहेगा, तो मॉम का सोल्यूशन मिलिट्री स्कूल जहाँ पे 10 डैड है, अरे 10 डॉर्मेट्री में 20 जन तो मिलिट्री, और मेरे को ऐसा मतलब बेचा था वो आइडिया, मतलब कैसा मालूम है कि मॉम का दोस्त का कोई तो बच्चा लोग उधर मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था, तो तभी प्रहार मूवी निकला था नाना पाटेकर का, ओके, जिधर आर्मी मूवी वगैरह, और बचपन से वो तेरा आर्मी वगैरह क्या रहता है ना, रोमांटिसाइजिंग, जीआई जो खेलता है ये वो सब, नहीं मार सकता पर बंदूक दे दो, बंदूक चाहिए मेरे को बस, ऐसा जीआई जो खिला है, मैं कार्टून देखा है मालूम है मेरे को, ग्रेनेड फेंकने समझता है कॉल ऑफ ड्यूटी, नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी तो था ही नहीं तभी, नहीं तभी तो था ही नहीं, तभी जीआई जो और इमेजिनेशन, कॉल ऑफ ड्यूटी मरने का एक्टिंग कर, वो बोल देने वो छोटा भाई का वो काम है, मरने का एक्टिंग कर, तो this military school had a huge ground, okay, like my mom sent me there and it had a huge ground, okay, and of course a lot of stories from that time will be coming in, but this particular incident I remember, we had to go, the hostel itself had a huge ground in Pune, this was based in Pune, the military school, okay, plus we had to, for our sham ka PT, we had to march all the way to the grounds where there was a massive ground and there was like a horse stable, horse riding, swimming pool, मतलब सब जो ये रहता है मिलिट्री स्कूल, ऑफ कोर्स, मतलब स्विमिंग पूल एक साल में साफ नहीं किया था, बिकॉज आई थिंक दे वांटेड टू शो कमांडो ट्रेनिंग, जंगल सिमुलेशन इसके लिए एल्गे वेल्गे कुछ निकालो मत, क्लोरीन डालो मत, पाकिस्तान का पानी अच्छा है तो, और वो मतलब प्रॉपर लेजिट मिलिट्री स्कूल का एक ग्राउंड था, देयर वाज इवन अ MiG-21 प्लेन व्हिच हैड क्रैश लैंडेड देयर, व्हिच वाज केप्ट preserved and kept over there, empty था, अंदर कुछ था नहीं, इंजन सब निकाला है, बिफोर द स्कूल और नो स्कूल में हुआ था, मतलब नहीं स्कूल में नहीं हुआ था, आई मीन स्कूल का प्रॉपर्टी, द स्कूल वाज देयर व्हेन इट क्रैश, नो नहीं, द स्कूल तो was gifted by Shahu Maharaj, the premises, so that is an old place, but I'm talking about the grounds which we had to go to, like march and go to, हाँ, तो वहाँ पे मिलिट्री स्कूल ग्राउंड्स पे वो लोग ने एक मॉडल टाइप रखा था, और उसके पीछे हॉर्स का वो रिंग था, हॉर्स राइडिंग का रिंग, एंड बिहाइंड द हॉर्स राइडिंग रिंग देयर स्टेबल्स, okay, so I remember the first time, dude, a guy who went from 10 by 10 feet compound of kabaddi and whatnot, jaga, and it was horse riding time, okay, that was it, first fuck the horse, I want to run, मैं भागता था dude, मेरे को तो मजा आता था ऐसा,
हाँ, अगर मेरे को वो करने को आई वुड हैव प्रिफर्ड दैट, Yeah. बिकॉज मैं घोड़े पे ऐसा पैसा देके भी चौपाटी पे बैठा नहीं है समझ रहा तू। तो इधर हम लोग पहुंचा है और द होल आइडिया वाज व्हाट यू नो, you have to make a line, okay, and then you have to go to the stables, and whichever stable के सामने you reach, that is your horse for the, like you'll ride that horse for the day. ऐसा हम लोग को लाइब्रेरी का बुक देता था एग्जैक्टली सेम वैसे ही, मतलब स्कूल का वही सीन रहता था ना ब्रो। एक सोल्यूशन मिला, हर जगह पे चिपकाओ बच्चे लोग को कंट्रोल कैसा कर सकता है, लाइन में खड़ा रहो, ऐसा रहो, ऐसा, तो वो सीन था। और बाकी का बच्चा लोग उधर 1-2 साल पहले से रह रहा था वगैरह। मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग, ठीक है। एंड आई, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन द लाइन एट दिस प्लेस, आई रीच द लास्ट स्टेबल, ओके, एंड दिस हॉर्स राइडिंग टीचर, ही वाज अ सब टीचर, क्योंकि वो जो एक्चुअल हॉर्स राइडिंग सिखाता है उसको ठीक नहीं था। Oh my god, so that means he has all responsibility but less pay. हाँ. So he has no fucks to give. No fucks to give. Okay, so everybody gets a horse, and I wanted नटराज बोल के एक घोड़ा था, ठीक है। हाँ. तो मेरे को नटराज का स्टेबल चाहिए था, बराबर। बिकॉज नटराज वाज नोन टू बी द मोस्ट डॉसाइल, शांत, हाँ. एकदम उल्लू मस्त ऐसा यू नो फेरी टेल घोड़ा, आराम से चल, मतलब तेरे को करना ही नहीं पड़ता है कुछ, वो ट्रेंड है ऐसा कि वो अपने आप चलेगा, अपने आप खुद को पार्क करेगा, तू उनका टॉपर है वो, हाँ, मतलब गाड़ी सेफ्टी है वो, घोड़े पे गाड़ी का सेफ्टी देता है वो, तो आई वांटेड नटराज, ठीक है। बट मेरा मिसकैलकुलेशन ऐसा बकवास हुआ ना कि मैं एंड का स्टेबल पे पहुंचा, और एंड का स्टेबल का घोड़े का नाम क्या था मालूम है? चंचल। नाम ही चंचल, ब्लैक हॉर्स, वेरी टॉल, रेड आईज, Oh shit. ऑलवेज रेड आईज। आई आस्क्ड, ये सोया नहीं है घोड़ा, क्या सीन है ब्रो? And the horseman of the apocalypse. Yeah. And the other kids are telling me, okay, that don't worry, Chanchal will not be used because Chanchal is never used. Because kids are not put on Chanchal because she's a very temperamental horse, you know. And just 2 weeks ago, dude, one kid had fallen down and he had like 45 stitches across his abdomen. Oh, you know, because of Chanchal. Because of Chanchal. All right, and not like no, not 2 weeks, like last year or something that happened. Okay. But they, all these stories are being exchanged, and that is why the other kids are telling me, टेंशन मत ले, ये घोड़ा वापरते नहीं है, मगर ये सब्स्टिट्यूट टीचर है, इसको मालूम है नहीं, तो ये मेरे को चंचल पे बिठाया। Oh wow. ओके, और फिर हम लोग अंदर है, तू क्रैश टेस्ट डमी बन गया। dude, I missed my 10 by 10 feet compound. You know, I was like, चलेगा मेरे को ये, because the moment I got on the horse, okay, all the horses were led into the ring, and then slowly the teacher, you know, gives commands and whatnot, and Natraj is the lead horse, because as I mentioned, नटराज बेस्ट है, सब लोग है। नटराज को देखो, अच्छा चीज तो है वो no, and he's a pacing horse, like so he will keep the other horses in line, like he will maintain the speed properly, because he used to follow things properly, you know. So he was the lead horse, the pace horse for it, and Chanchal was way at the back because last stable. Okay, now slowly all the horses are picking up speed, okay, slowly that fellow is like, you know, ऐसा करके, and then suddenly चालू हो जाता है, suddenly, and then Chanchal decides to overtake every horse. So Chanchal breaks out of the line of horses. Today's my day, man. And just starts running, dude. Just starts running. Just starts picking up pace. And it starts picking up pace, suddenly. Okay. So I lose my balance, dude. So I'm hanging on to the neck of Chanchal on one side with just my one leg in the saddle, the other is out because balance खो गया मैं। तो ऐसा I'm just hanging on to the neck for dear life, dude. John Wick. और ये full स्पीड पकड़ते जा रहे एंड इट ऑलमोस्ट फील लाइक अ 3D मूवी नाउ, बिकॉज आई कैन सी दूसरा घोड़े का पैर जस्ट ऐसा शक्ल पे आ रहा है, मालूम है, हूव्स वूप करके वूप, एंड आई एम लाइक अरे रे रे बाबा क्या चलेगा, एंड आई एम शिटिंग माय पैंट्स विद आई एम स्कैर्ड, लाइक यू नो, आई एम लिटरली लाइक इफ आई हैड शिट इन मी आई वुड हैव शैट, यू नो, दैट इज खाना अच्छा I was just scared, dude, so I'm just trying to hang on for dear life, okay, and after like 2-3 rounds this substitute teacher suddenly notices that there's no kid on a horse. On the horse. Till then he's looking on the other side of the stable. नटराज क्या मस्त है ना. And then he just देखा अरे ये क्या हो रहा है, तो then he goes to like stop the horse and whatnot, you know, and Chanchal is still running. All the other horses come to a stop, okay, but Chanchal is still running, and while she's doing those laps I can just see Natraj judging the horse that I'm on, like अरे क्या कर रही है तू पागल, रुकना, ऐसा क्यों भाग रही है इतना, ऐसा वाला scene, you know.
And the moment it stopped, the horse stopped, I was like, dude, I want to die. This is how my parents will not be able to recognize me. Thobda tootega mera sab kuch. And thankfully none of those things happened. Okay, and I was stopped, and the moment I got off the horse na, everybody started clapping. Like they thought I was doing a stunt. Oh. they were all impressed, dude. अरे क्या मतलब तेरे को तो आता है ब्रो ऐसा करके. ए तू बोला मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है साले. and in that moment, you know, you sometimes realize na, like a lie can help you sometimes. You know, in that moment I processed very quickly the information that ये military school है, मैं 5वीं में, ये लोग वैसे भी मेरे को रैग करता है, थोड़ा कूल बनते, ओके, ताकि मेरा चिक्की मैं ही खा सकूं. नहीं तो लोग को लेके जाता था डूड. बोला चल एटलीस्ट यू नो. सो दैट इज व्हाई आई जस्ट प्लेड इट अ बिट लाइक या. एंड देन आफ्टर दैट I did not go for one horse riding lesson. I used to come up with all sorts of things, hide underneath MiG-21, ढूंढते बैठ मेरे को, मैं नहीं आ रहा है. But that was what it was. तू मिलिट्री स्कूल में जाके वो 10x10 का गेम्स खेल रहा था. हाँ, वो चलता था मेरे को. वो ऐसा रेस्टोरेंट एंड बार के बाहर रहता था ना, अपन बच्चा था तभी, ऐसा 5 रुपए का 1 रुपए का कॉइन ऐसा लेके डाले, वो चलेगा डूड मेरे को. Oh dude, मेरा स्कूल was like middle between both those two things. We had a ground. We had like a football this and all, but our PT teacher was very zen. Our PT teacher, she came in and she said that one day she just comes in, no, we are not going out to play games because you kids play and I cannot take responsibility for that. कोई गिर गया लग गया तो. I said, this is what kids do. This is the only thing you can trust kids to do on their own. तो वो बोली नहीं आई कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट. लाइक मैडम फुटबॉल खेलने गए, you know, we want like can we get a. No, I think the PT teacher was told by the principal, ये साल का बजट में बैंडेड नहीं है. नहीं हो रहा है. हम लोग क्रेयॉन खरीदा है, इसके लिए बैंडेड नहीं है. तो ये मत करो. Oh dude. But yeah, we have gone all over the globe. We have spoken about a lot of different things today, right? Let's wrap it up for today. What do you say? Yeah. Okay, so that is it's okay. We'll cover the other topics on our next episode, dude. We can chill out. This is our podcast. Okay, we are doing it, so we can do whatever we want to. Right? So that brings us to the end of episode 5 of Radical Measures podcast, ladies and gentlemen. All right. So this is me, Gaurav.v.pawar on Instagram. That is Cordero Noel on Instagram. All right. You'll see the names over here. Do follow us on Instagram. We end up uploading clips, reels from the podcast as well. So follow us on that for more content. Share Subscribe. stuff. I'll say. Don't worry. Let me sell everything, you know, Insta, then YouTube. So like share our content if you like it. If you find the jokes funny, please do that. Also, as far as our YouTube channel is concerned, please do go ahead and subscribe to our channel. It would help a lot. All right. And if you don't, guess what? You'll choke on a piece of plastic. I know it. All right. So if you don't want to have that sort of a terrible end, subscribe to our channel. Okay. And take care of yourselves. Take care of yourselves. Be safe. Clean your hands. COVID is still going on, so don't be an asshole. All right? Bye-bye. Take care. Take care. Bye. That's a wrap, buddy. Bye.